Assalamualaikum, my dear students. And last quiz, I was busy with some official assignments, and we will continue with the lectures. We will finish first the frog. उसके बाद 2-4 दिन हम 12th क्लास के लिए क्लास करेंगे. So आज हम बात करेंगे about two systems in frog. One is the circulatory system, and उसके बाद we'll talk about the excretory system. उसमें हम male का पढ़ेंगे आज. So since male का excretion and reproductive system they are combined, so that is called as urinogenital system. ठीक है बेटा. So आज हम पढ़ेंगे. First we'll talk about circulatory system of frog. So when I talk about the circulatory system of frog, the first important thing is that it's closed circulatory system. So that means the blood always flows in well-defined vessels. So it's called as closed circulatory system. उसके बाद the three components are heart, blood vessels, and blood. So these are the three components of the circulatory system. So now coming first to the heart. So heart is a muscular structure. So heart is a muscular structure. And beta उसके बाद the heart in case of frog it's 3 chamber. This is important. कितने chamber होता है बेटा? 3 chamber. So इसमें 2 होते हैं atrium, 2 atrium. तो उनको atria कहेंगे और auricles कहेंगे. So 2 auricles होते हैं and 1 ventricle. So ventricle यहाँ पे एक ही होता है बेटा, ठीक है? 2 atriums होते हैं, समझो. अगर थोड़ा सा हम बनाएंगे ऐसे. So this is the So these are the 2 atriums and this is the 1 ventricle. ठीक है बेटा? So this is the right atrium, this is the left atrium. So this is the ventricle. अब होता क्या बेटा कि जो deoxygenated blood होता है बॉडी में, that actually comes to the right atrium. So deoxygenated blood. Usually यहाँ पे deoxygenated पूरा नहीं होता, it's mixed. It's having we can say oxygenated blood as well as deoxygenated blood. So it's the deoxygenated comes to the right atrium, ठीक है बेटा, and it comes to the इसके साथ एक और स्ट्रक्चर होता है राइट एट्रियम के साथ, that is called as sinus venosus. So we can say that the venous blood does not directly go into right atrium. There is an accessory triangular structure known as sinus venosus. जहां पे venous blood आता है, deoxygenated blood आता है with the help of large veins. अगर आपको याद होगा तो उनको हम बेटा बोलते हैं vena cava. So vena cava are large veins which bring deoxygenated blood to the right atrium. So once the deoxygenated blood goes here in the right atrium, it goes then to the वेंट्रिकल. ठीक है बेटा. उसके बाद यहां से ब्लड जाता है, यहां से एक लार्ज वेसल निकलती है जिसके 2 ब्रांचेस होते हैं. So a large vessel originates from the we can say ventricle, which divides into 2 branches. One is known as pulmonary artery. यहां पे बेटा देखो, आप यहां से 2 ब्रांच निकलते हैं. One goes to the lungs, which is pulmonary artery, and one takes the blood to the rest of the body. That is known as systemic artery. Systemic artery जिसको हम बेटा aorta कहते हैं. ठीक है बेटा. तो यहां से क्या होता है कि यहां से अब जो ब्लड आ गया इसमें डिऑक्सीनेटेड, इसमें एक्चुअली मिक्सड होता है, ये चला जाता है लंग्स में जहां से ऑक्सीनेट होकर आता है, या स्किन में, जो कि आपको पता है इसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है, क्यूटेनस भी होता है. सो यहां से लंग्स से जाता है, वहां से ऑक्सीजनेशन होके या स्किन से ऑक्सीजन होके ब्लड वापस आता है एंड गोज टू दी लेफ्ट एट्रियम. तो यहां से आता है कौन सा बेटा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. It can come through the pulmonary veins. अब यहां से आ गया बेटा ऑक्सीडेटेड ब्लड, तो वो भी चला गया इधर. So there is mixing of oxygenated and we can say deoxygenated blood. उसके बाद ये चला जाता है यहां से, उसके बाद ऊपर, फिर यहां से some goes to the pulmonary artery, some goes to the
एओर्टा। ठीक है बेटा, इसका माने हो गया बेटा यहां पे जो ब्लड है ना इट्स ऑलवेज मिक्स्ड, इट्स हैविंग बोथ ऑक्सीनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीनेटेड। तो जो यहां से हार्ट से निकलता है ब्लड इट्स हैविंग बोथ, इट्स हैविंग ऑक्सीनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इस टाइप के हार्ट को हम बोलते हैं बेटा इट इज कॉल्ड एज आर्टेरियो वेनस हार्ट, क्योंकि एक क्लासिफिकेशन हार्ट की इस बेसिस पे भी है, जो हार्ट बाकी ऑर्गन्स को सिर्फ ऑक्सीनेटेड ब्लड करता है, पंप उसको हम आर्टीरियल हार्ट कहते हैं। जैसे ह्यूमंस में जो यहाँ पे लेफ्ट वाले से लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आता है दैट इज ऑलवेज ऑक्सीनेटेड, तो दैट इज सेपरेट, यहाँ पे दो वेंट्रिकल्स होते हैं सो देयर इज नो मिक्सिंग, तो वहां से जो ब्लड जाता है ना ऑर्गन्स में दैट्स ऑलवेज ओनली ऑक्सीनेटेड, सो दैट इज कॉल्ड एज आर्टीरियल हार्ट। कभी कभी क्या होता है बेटा इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वहां पे वेनस हार्ट, वहां पे वी कैन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप होता है दैट्स कॉल्ड एज वेनस हार्ट। तो दिस यहां पे जो कि दोनों है इट्स हैविंग डीऑक्सीनेटेड एज वेल एज ऑक्सीनेटेड, सो इट्स कॉल्ड एज आर्टेरियो वेनस हार्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, उसके बाद ये जो हार्ट होता है इट इज कवर्ड बाय ए प्रोटेक्शन, इट्स कवर्ड बाय ए लेयर व्हिच इज नोन एज पेरिकार्डियम, ये आपको पता है। ठीक है बेटा, so it's covered by a protection known as pericardium. So this was about the heart. यहाँ पे हमने कहा it's बेटा how many chambers? There are 3 chambers, 2 atrium and 1 ventricle. ठीक है बेटा, उसके बाद हमने कहा कि जो right atrium होता है it's having an additional accessory triangular structure which is known as sinus venosus, जहां पे पहले deoxygenated blood आता है with the help of large veins known as vena cava, वहां से फिर ये जाता है वेंट्रिकल्स में, वहां से एक लार्ज वेसल निकलती है जिसके 2 ब्रांचेस होते हैं, वन गोज टू द लंग्स नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, वन गोज टू द बॉडी नोन एज सिस्टेमिक आर्टरी और एओर्टा। उसके बाद हमने कहा बेटा कि ये जो हार्ट होता है इट्स कवर्ड बाय द प्रोटेक्शन नोन एज पेरिकार्डियम। उसके बाद हमने कहा बेटा सिंस यहाँ पे जो ब्लड है व्हिच गोज टू द ऑर्गन इट्स मिक्स्ड ब्लड, इट्स नोन एज आर्टेरियो वेनस हार्ट। ठीक है बेटा, ओके। Now coming to the next component. The next component is blood. जो blood होता है बेटा in case of frog, it's having the both components. It's having plasma, which is the fluid component, and the second is the cells. इसमें भी बेटा 3 किस्म के cells होते हैं जो हमने humans में पढ़ा, RBCs, WBCs and platelets. So the difference here is only that the RBCs and platelets they are nucleated. This is the only difference. ठीक है बेटा, so they are न्यूक्लिएटेड, इसको इंपॉर्टेंट बेटा याद ना, सो दे आर न्यूक्लिएटेड। ठीक है बेटा, उसके बाद आरबीसीज आल्सो हैव द रेड कंपोनेंट दैट्स द हीमोग्लोबिन, सो दे हैव द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। आरबीसीज हैव nucleus and platelets also have nucleus, so they are nucleated, and RBCs are also hemoglobin. Plasma is the fluid component, so this is done ना। तो चूंकि इसके बारे में डिटेल पढ़ी है तो मैं सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें वही आपको बोल रहा हूं। ठीक है बेटा, उसके बाद ब्लड वेसल्स में भी जैसे ह्यूमंस में होते हैं आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, यहां पर भी वैसे होते हैं, हैव वेल डिफाइंड वेसल्स। ठीक है बेटा, सो दिस वाज अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। Now coming to the second system, that is genital system of male. देखो बेटा इन केस ऑफ मेल फ्रॉग यहां पे 2 सिस्टम कंबाइंड है। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था इन केस ऑफ फ्रॉग देयर इज एन ओपनिंग व्हिच इज नोन एज क्लोएका। दिस क्लोएका इज द ओपनिंग ऑफ 3 systems, excretory, reproductive system and we can say a digestive system. ठीक है बेटा, so when I talk about the male वहां पे 2 systems common opening होती है उनकी into the we can say digestive system that we'll see. So that combination of excretory and reproductive system is known as urinogenital system. अब हम देखिए इसमें क्या आता है। इसमें क्या आता है बेटा, in case of males they have जो उनका excretory system होता है ना that comprises of a pair of kidneys. So उनके पास they have a pair of kidneys which are bean shaped. So we can say excretory system of frog it's comprises of a pair of kidneys जिनके ऊपर ऐसे structures होते हैं, finger like structures होते हैं, बहुत सारे 10-15 finger like structures होते हैं। They are known as fat bodies. So we can see on the upper side of frog
on the kidneys there are structure, finger like structure which are known as fat bodies. इनका रोल होता है बेटा हाइबरनेशन में, मेटामॉर्फोसिस में, ठीक है बेटा. उसके बाद ये जो आपका ये डायग्राम है ना, मेल वी कैन से यूरिनोजेनिटल सिस्टम, इट्स गिवन इन योर आई थिंक RES, दैट इज 119 पेज पे आप देखेंगे डायग्राम. तो वहां पे बनाया है स्ट्रक्चर ये. तो वहां पे किडनीज के ऊपर फैट बॉडीज है. उसके बाद इसके साथ ही एसोसिएटेड होते हैं यहाँ पे टेस्टीज, पेयर ऑफ टेस्टीज यहां से होगा बेटा. ये जो टेस्टीज होते हैं ना, दे आर अटैच्ड टू किडनीज बाय मींस ऑफ ए मेम्ब्रेन. सो किडनीज यहां पे समझो दे आर अटैच्ड, यहां पे किडनीज है, दे अटैच होते हैं किसके साथ, टेस्टीज अटैच होते हैं किडनीज के साथ विद द हेल्प ऑफ ए मेम्ब्रेन known as mesonchyme. So we can say that the testes are attached to kidneys with the help of a membrane known as mesonchyme. उसके बाद क्या होता है बेटा, यहां से टेस्टिस से निकलते हैं 10 से 12 छोटे छोटे ट्यूब्स which collect the sperm from the testes. These tubes are known as vasa efferentia. So the small tubes from the testes collect the sperm and then उसके बाद they pour the secretion into a canal. तो किडनी के अंदर एक कैनाल रहती है, समझो यहां से आ गया. So there they pour that secretion into a canal. That canal is known as Bidder's canal. This is very important, पूछा जाता है. यानी यहां से स्पर्म्स आ गए बाय मींस ऑफ ट्यूब्स नोन एज वासा एफरेंशिया. उसके बाद ये कैनाल में छोड़ते हैं जिसको बेटा हम बिडर्स कैनाल कहते हैं. सो दैट्स नोन एज बिडर्स कैनाल. अब इसके अंदर क्या होता है, इसी तरीके से किडनीज है ना, किडनीज के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं और बेटा नेफ्रॉन्स भी कहते हैं. तो वो भी एक यहां से ट्यूब बनाते हैं, आपस में ये ट्रांसवर्सली दे आर कनेक्टेड. तो यहां से ये जो नेफ्रॉन्स है दे एक्चुअली आर रिस्पांसिबल फॉर फिल्ट्रेशन, ये यहां से यूरिन बनाते हैं, ठीक है बेटा. उसके बाद ये दोनों ट्यूब्स आपस में मिलते हैं. तो जब ये मिल जाते हैं ना, तो यहां से एक नया ट्यूब निकलता है जो कि रेक्टम में ओपन होता है. सो यहां से एक ट्यूब होगा बेटा, सो दैट इज the rectum. So now the both tubes, Bidder's canal as well as the tube which is collection of we can say nephrons, they combine and they form a tube known as urinogenital duct. So यहाँ से इस urinogenital duct में दोनों होंगे. It will have the sperms, it will have the we can say excretory material, it will have the we can say urina. So then that duct it takes that we can say excretion to the rectum. This is the rectum. So this is the rectum. यहां से क्लोइका है, ठीक है बेटा. उसके बाद यहां से there is one more structure that is called as urinary bladder, जहां पे यूरिन कैन से स्टोर रहता है. अल्टीमेटली फिर वो बाद में क्लोइका के थ्रू ही बाहर जाता है, ठीक है बेटा. सो यहाँ पे आपने देखा बेटा कि इट्स इंटीग्रेशन ऑफ टू सिस्टम्स. यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है मेल का और यहाँ से इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है. ये बाद में दोनों मिलके कंबाइन होके एक ट्रैक्ट बनाते हैं जिसको हम बेटा यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं. तो इसमें मैंने क्या कहा बेटा, इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इट्स मेड अप ऑफ कैन से टू किडनीज जिसके ऊपर फैट बॉडीज होते हैं एंड साइड से टेस्टिस भी होते हैं व्हिच इज कनेक्ट टू द किडनी विद द हेल्प ऑफ मेसोंचियम. उसके बाद यहां से छोटे छोटे ट्यूब्स निकलते हैं जिनको बेटा वासा एफरेंशिया कहते हैं. उसके बाद ये अपनी सिक्रीशन को एक कैनाल में छोड़ते हैं जिसको बेटा बिडर्स कैनाल कहते हैं. उसके बाद किडनीज के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं जहां से फिल्ट्रेशन होता है. उसके बाद फिल्ट्रेशन होने के बाद ये उस ट्यूब के साथ कंबाइन होता है किसके साथ, बिडर्स कैनाल के साथ. तो बनाते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट जो बाद में कहां पे ओपन होता है, रेक्टम के पास. उसके बाद यूरिन स्टोर रहता है कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर में. बाद में जब ये यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यूरिन भी आता है क्लोइका के थ्रू, स्पर्म्स भी आते हैं वहां से, ठीक है बेटा. उसके बाद आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ फ्रॉग द एक्सक्रीटरी मटेरियल इज यूरिया, सो दे आर यूरियोटिलिक. So beta, this is important. So they are ureotilic because the excretory material here is urea. So they are ureotilic. ठीक है बेटा. So this was about the excretory system of male. So which is actually combination of two systems. So it's called as urinogenital system. ठीक है बेटा. So tomorrow we'll talk about the
सिस्टम ऑफ फीमेल्स एंड हम कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को, इस फ्रॉग वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करना, डायग्राम को देखना, अच्छे से ड्रॉ करना। ठीक है, इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम।